आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हम सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर है दिल्ली के अंदर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर दफा 370 मामले पर समात जारी है। 8वें रोज में समात अब दाखिल हो चुकी है और आज 8वें दिन में समात शुरू हो चुकी है। दफा 370 मामले पर अदालत उस्मा में समात इस वक्त जारी है। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली जो अर्जियां है यौमिया बुनियाद पर वो समात जारी है और आज 8वें दिन की समात शुरू हो चुकी है। सरकारी वकील की जानिब से भी दलाइल पेश किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समात कर रही है। बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल है। इससे कबल 2 अगस्त को समात शुरू हुई थी और जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ सीनियर वकील और राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल ने बहस का आगाज किया था और आज 8वें दिन में समात शुरू हो चुकी है। Appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this proclamation, namely, I'll come straight to 2, the operation of the following provisions of the Constitution and of the state constitution is hereby suspended, namely, so much of the first proviso to Article 3 of the Constitution as relates to the reference by the President to the legislature of the state, and the second proviso to that article. And then so much of clause 2 of Article 151, etc. But I'm concerned with this part in particular. So much of the first proviso to Article 3 of the Constitution as relates to the reference by the President to the legislature of the state, and the second proviso to that article. This is now referring to the Constitution as extended to Jammu and Kashmir, because there are 2 provisos in in Article 3 which were introduced by the 1954 presidential order. Just one thing, Mr. C. Singh, the word used over here is suspended. I'm sorry? The word used over here is suspended. Suspended, that's right. It's not. No, suspended. Now, we are talking about a presidential proclamation where the Constitution has not been able to be worked on the report that the President has presumably got from the governor, etc. And therefore, there's a presidential proclamation under 356. No, I specifically drew your attention to this because you said that while referring to the 4th argument of yours, the 4th contention of yours, you use the phrase that in case there is possibility of misuse. By suspending and then changing the nature of the state. Please continue there. The suspension becomes like an obliteration. If you suspend a requirement to consult the people of the state and then change that state into a union territory, that suspension it's an obliteration virtually. It doesn't.
it might not make any difference, Mr. Singh, whether we call it a suspension or a So, Mr. Singh, are you approaching it from the perspective of Article 356, that the power under Article 356 cannot be used to achieve these ends, such as the suspension? I mean, how are you further exploring the point? Yes, unless this was in furtherance of the object of 356 and it pertained to a body or authority of the state. Here, the suspension is of a constitutional provision which deals with consultation with the representative body of the state, which is the legislature of the state, the legislative assembly of the state. Now, this can't have even the remotest nexus with an Article 356 object. To suspend consultation with the legislature of a state, or even, I'm now arguing against myself, or even the substitute for that legislature, which is Parliament, to suspend that consultation altogether, can't have any nexus with the object of 356. 356 is for the purpose of, because the constitution hasn't been working in that state, or the state isn't able to be governed as per the constitution, and therefore there's a temporary suspension. And your Lord, I don't want to go into repeat arguments on 357. The argument on your side has been that 356 is for the purpose of restoring democracy, not for abrogating. That is the argument. That's right. And this, unless the union were to tell your lordship when they start their arguments, whenever they do, unless the union is to tell your lordship that yes, it was an object of Article 356 to change Jammu and Kashmir from a state to a union territory, they can never justify this as having any nexus with the object of 356. Therefore, there are two distinct arguments. Therefore, one, whether the power under Article 3 can at all be utilized to convert a state into a union territory. That's one. That I'll come to subsequently. And the second, whether this power was correctly utilized or constitutionally exercised at a time when Article 356 was in operation. Does Article 356 empower the union to do this? That's right. But there are two different areas which we would like to hear from you very briefly. I'm very grateful to my Lord the Chief Justice, but this is one step before that. I'm saying that if you read, it says, make such incidental and consequential provisions as appear to the President to be necessary or desirable for giving effect to the objects of the proclamation, including provisions for suspending in whole or in part the operations of any provisions of this Constitution relating to any body or authority of the state. So my argument here is, one, such the para C2 can never even remotely be for giving effect to the objects of the proclamation. On 18th of December or 19th of December 2018, दफा 370 की मनसूखी करने वाली अर्जियों पर जहां अदालत उस्मा में समाअत जारी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि दफा 370 को आईन के मुताबिक मनसूख किया गया और दफा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को फरोग मिला है और इसे मनसूख करना वक्त की अहम जरूरत थी। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा ताबिश कमाल से बात करते हुए किया। जम्मू कश्मीर 370 35A को लेकर के समाअत जारी है और ऐसे में आज जो पिटिशनर्स हैं उनके लगभग दिन खत्म हो गए हैं। तमाम जो वकीलों को समय दिया गया था उन सब ने अपनी अपनी बात रखी है। सुप्रीम कोर्ट में सभी वकीलों ने पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी बात रखी और कहा कि हमें संविधान, कोर्ट, आइन पर पूरा भरोसा है। हमारे साथ बीजेपी सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी हैं। बात करते हैं सर, 370 को लेकर के लगातार जम्मू कश्मीर का आपको पता है क्या हालात है। आप लोगों का एजेंडा था 370 को हटाना, वो आप लोगों ने किया। अब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है, जो वकील वहां पर जिरह कर रहे थे उनके जो समय है वो पूरा हो चुका है और तमाम जो लीडर हैं जम्मू कश्मीर के वो आए, महबूबा मुफ्ती भी आई, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उसके अलावा मुजफ्फर शाह हैं और जो तमाम दीगर लीडर हैं वो पहुंचे और कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कोर्ट से कि 370 और 35 बहाल होगा। भारत सरकार ने संवैधानिक तरीके से इसको लोकसभा राज्यसभा में रखा और लोकसभा राज्यसभा के
सारा विचार होने के बाद बहुमत से धारा 370 को तोड़ा है। विपक्ष ने भी इसमें अपना पक्ष रखा। तो इन सभी विषयों को लेकर के हमें पूर्ण विश्वास है माननीय सुप्रीम कोर्ट पर, और विश्वास है कि धारा 370 जो तोड़ी गई है इसी प्रकार का फैसला आएगा। मतलब जो बहाल कराने के लिए तमाम जो पिटिशनर कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कोई फायदा होगा? देखिए, अपना पक्ष रखने का अधिकार सभी को है, हमें कोर्ट पर विश्वास है। तो कोर्ट पर तो उन लोगों को भी विश्वास है। ठीक है, कोर्ट जो निर्णय लेगा वो सिर माथे पर। आपको लगता है कि 370 दोबारा से आ जानी चाहिए जम्मू कश्मीर में 35 है? क्योंकि वहां के हालात की अगर बात की जाए तो लगातार हालात तो उतने बेहतर नहीं हुए जितना बड़ा दावा किया जा रहा है। 370 अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इन सभी चीज़ों को लाया है और इसने पूरे देश से एक तरह से जम्मू कश्मीर को अलग किया है। पत्थरबाजी, रोजमर्रा के जो कैलेंडर जारी होते थे, इन सभी विषयों को लेकर के जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनी है, उसको दोबारा खराब नहीं होने देंगे। एक बहुत अहम और आखिरी सवाल लूंगा। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं डॉक्टर एसटी हसन, और समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर भी, वो ये कहते हैं कि 370 हटाया सिर्फ इसलिए गया था कि कश्मीरी मुसलमानों को प्रतिपादित करके उनको परेशान किया जा सके। 370 हटाएगा, 371 नहीं हटाया गया। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि वहां पर मुसलमान नहीं है, जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, इसलिए 370 और 35 को हटाया गया। वो अपनी स्टेट से मतलब रखे, जम्मू कश्मीर के बारे में ना तो उनको पता है ना वो जानते हैं। इस प्रकार के बयान देना गलत है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। खुदराज की समाअत शुरू होने से कबल सीनियर वकील इरफान लोन ने कहा है कि दफा 370 को गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीके से खत्म किया गया। उन्होंने कहा कि जो गुज़िश्ता 70 सालों से नाइंसाफियां हुई है उनकी बहाली के लिए कानूनी जंग जारी रखेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशंस हिंदुस्तान के साथ, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ रहेंगे कि भाई हमारा 3 चीजों पे इनके साथ रिश्ता होगा, जिन 3 चीजों पे लेजिस्लेट कर सकते हैं। बाकी सारा हमारे पास, बाकी सारा हमारा जेके कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी सारा, हाँ उसमें ये रहा 370 में फिर कि भाई अगर कोई जो इंस्ट्रूमेंट में लिखे गए हैं सब्जेक्ट्स, उसके अलावा अगर आप कुछ लाना चाहते हैं अपनी मर्जी से, आप कॉन्करेंस दीजिए, उस खूबसूरत इंडियन प्रोविजन को भी हम लाएंगे। ठीक है, तो वो वहां की सरकार तक था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक था। तो इन्होंने क्या किया, 5 अगस्त को इन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे ही नहीं वहां, लेजिस्लेचर भी नहीं थी, मिनिस्ट्री भी नहीं थी, डिसॉल्व कर दिया। और गवर्नर साहब जो है उसने कॉन्फ्रेंस दी, कहा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है अप्लाई हो जाए। देयर बाय मीनिंग कि एक तरीके से उन्होंने 370 को पूरा खोखला कर दिया, उसे पूरा खत्म नहीं किया, लेकिन पूरा। और वो कॉन्फ्रेंस कहां से गवर्नर साहब ने लाई, जबकि किताब में लिखा गया है 370 में कॉन्फ्रेंस मतलब हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहां पर था ही नहीं। तो हम ये मानते हैं कि इल्हाक जो था 3 चीजों पे था, और 370 जो है उस इल्हाक को कानूनी शक्ल देता था, और हमारा जेके कॉन्स्टिट्यूशन था, और ये बिल्कुल गैर आईनी और मेरे भाई मैं कहना चाहूंगा गैर जमहूरी था कि लोगों को आप बंद करें, लोगों से आप ना पूछे, उनका आईन आपसे छीने। क्योंकि आईन के साथ साथ हमें देखना है डेमोक्रेसी में रह रहे। मेरे जैसे नेशनलिस्ट लोग को कहीं लोग ताने मारते हैं, कहते भाई वो देखो उनके पास जो दूसरे साइड पड़ोसियों के पास कश्मीर है, उनके पास कागजों पे ही सही प्रधानमंत्री है, उनके पास जद रियासत है, उनके पास लेजिस्लेचर है। मैं तो पूरा स्टेट था, मेरा प्रधानमंत्री था, मेरा राष्ट्रपति था, विधानसभा थी। अब तो राष्ट्रपति को छोड़िए, प्राइम मिनिस्टर को छोड़िए, मेरे पास सीएम भी नहीं रहा, गवर्नर भी नहीं। गवर्नर से नीचे एक पोस्ट होती है, उसे एलजी कहते हैं, क्या, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो क्या ये कोई इंसाफ का यही तकाजा है? हमने कुछ, देखिए कुछ लोगों को कहता इनको स्पेशल स्टेटस मिला, नहीं, ये हमने कुछ चीजें इनको सरेंडर की हुई थी J&K ने। सो एज ए नेशनलिस्ट आई बिलीव कि एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कानून में 370 का चल रहा है, लेकिन उसके अलावा जो पिछले 70 साल में हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हम उस नाइंसाफी को दूर करने के लिए इंशाल्लाह लड़ेंगे, अवामी सतह पे भी लड़ेंगे, और जो भी मुमकिन होगा वो कोशिश हम करेंगे, कानूनी सतह पे भी लड़ेंगे। जी, आप तो आइन की बात कर रहे हैं, तो आइनी तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो डिप्टी सीएम है, पूर्व में रहे थे आपके एक्स डिस्ट्रिक्ट सीएम कविंदर गुप्ता, उन्होंने मुझसे आज सुबह बात करते हुए ये कहा कि ये तो लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है और ये आईनी तौर पर सब कुछ ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा ने इसको पास किया, 370 35 है, तो बीजेपी का एजेंडे में मुद्दे में लिखा हुआ है उनके कि उनको हटाना है, और लोकसभा राज्यसभा ने उसे पास किया है, राष्ट्रपति ने मोहर लगाई है। मैं समझ गया, आप थोड़ा रिसर्च करिए। बीजेपी ने पूरे देश में वोट बटोरे कि हमें आप नंबर्स दे दो, तब जाके हम 370 को हटाएंगे। लेकिन आपको पता ये कैसे हटाया गया? ये नंबर से नहीं हटाया गया, ये राष्ट्रपति के एक आदेश से, जिसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहते हैं। किससे हटाया गया?
272, 273 जो दो नोटिफिकेशंस है वो माननीय राष्ट्रपति जी की ओर से निकली है, जो 370 में प्रोविजन था उसके द्वारा इन्होंने ये सारा खत्म कर दिया। तो इन्होंने तो जो कहते थे कि 368 कॉन्स्टिट्यूशन में जिसे अमेंडमेंट कहते हैं वो इन्होंने इन्वोक नहीं किया, जिसके लिए इनको नंबर्स चाहिए। इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 370 के द्वारा निकाला, उसके जरिए से ये ले लिया। और बीजेपी का कल तक क्या पक्ष था, जो आज सत्ता में है, जो रेस्पोंडेंट्स है, उनका ये कहना था कि भाई जो इससे पहले कुछ प्रोविजंस लाए गए हैं, जम्मू कश्मीर को 35A दिया गया है, वो सही ढंग से संविधान में संशोधन नहीं हुआ है। आप समझे मेरी बात, ये राष्ट्रपति ने संशोधन किया है, ये इनका सरकार का पक्ष था। आज वही सरकार ने क्या किया, उन्होंने भारत के संविधान को संशोधन कैसे किया, उसी राष्ट्रपति के ऑर्डर से। आप समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल समझ रहा हूं। अंतर्विरोध, कंट्राडिक्शन आप देखिए। तो ये इनका ये कहना कि कोई फेडरलिज्म नाम सुना है। उधर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मुजफ्फर शाह ने भी कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है, क्योंकि जो कुछ भी किया गया वो गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीके से किया गया। कविंदर गुप्ता के बयान को मुस्तरद करते हुए मुजफ्फर शाह ने कहा कि हुकूमत पर रहकर भाजपा ने ही कानून का गलत इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, किसी के पास वो पावर नहीं है कि आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को कलादम करार दें, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने एब्रोगेशन किया है, इसी तरह जो कानून कहता है, जो आइन कहता है, आप एब्रोगेट नहीं कर सकते हैं जो आपने रास्ता इख्तियार कर लिया है। सो बाकी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने में मामला है, पूरी दुनिया की निगाहें इस पे लगी हुई हैं और हमें उम्मीद है कि एक जस्टिस दी जाएगी और बहुत ही पूरी उम्मीद है हम कि एक पॉजिटिव फैसला आएगा। उनके पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। उन्होंने केस शुरू होते ही पहले कोशिश की थी, जब उन्होंने एफिडेविट दायर किया था डेवलपमेंट के बारे में कि हमने ये किया है, वहाँ दूध की नहरें हम चला रहे हैं और छत अब सोने के बन रहे हैं वहाँ पे, उसको टर्न डाउन कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और कल ही किसी ने याचिका दायर की थी कि ये इसको पूरा स्टे कर दीजिए प्रोसीडिंग्स को। सो मेरे माननीय बीजेपी के साथी बहुत ही तजब्जुब में हैं और उनको ये समझ आ रही है शायद कि केस उनके पक्ष में नहीं जा रहा है। उन्होंने कदम उठाया है कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार करके, एक फ्रॉड करके, और वो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने में उसके हर एक पहलू पे देखा जा रहा है, गौर किया जा रहा है। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, मेरे हिसाब से तो उनने एक केस हार लिया है। भाई उसको बहाल करना है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। आप संविधान से चलेंगे कि बीजेपी के पार्टी प्रोग्राम के तहत चलेंगे, या अगर किसी ने ख्वाब देखा है उससे, डज इंडिया रन बाय एनीबडीज ड्रीम्स or by any party's manifesto? It is run by the constitution, my dear friend. खमैनी चौक बिमना के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए बिमना बडगाम रोड को बंद किया, जिस दौरान कुछ देर तक ट्रैफिक की आमद रफ्त मुतासर हुई। इस मौके पर एहतजाज कर रहे लोग सिटी रोड एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर के खिलाफ नाराबाजी कर रहे थे। श्रीनगर के खिलाफ नाराबाजी करते हुए एहतजाजी लोगों का कहना था कि इलाके में राब्ता सड़क की नागुफ्तबे हालत की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और अगरचे बार बार मुतलका हुकाम की नोटिस में भी लाया गया कि रोड पर मैकडम बिछाया जाए, ताहम आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसको लेकर इलाके के लोग सड़कों पर आकर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। इससे पहले भी हमने 5-6 बार एहतजाज किया, तो लेकिन कोई फ़र्क नहीं आई। एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक टस से मस नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं हमारे स्कूल के बच्चों का क्या हाल है, जिनको 9 बजे निकले तो वो 12 बजे बिमना बाईपास पहुंचते हैं। लेकिन अभी तक 2 महीने पहले ने बोला 1 महीने के बाद यहाँ पर काम शुरू होगा, लेकिन अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। हम बार बार सड़कों पर आने के लिए मजबूर हैं। इससे डीसी साहब भी इस बात को संजीदा तरीके से नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मुसीबत का अजाला हो जाए, इस काम पर मैकडम इस रोड पर मैकडम से हो जाए। नहीं, हमारे काम शुरू नहीं हुआ था, सिर्फ यकीन दहानियाँ दी उनने कि काम शुरू हो जाएगा मुहर्रम के महीने के बाद भी। ऐसे ही मुहर्रम के महीने के बाद हम काम शुरू करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। टिल डेट ऐसा ही है, टाल मटोल किया जाता है, दिन गुजारे जाते हैं। 3 सालों से 1 किलोमीटर रोड पर काम नहीं हो रहा है। खुदा के वास्ते हमें बताओ, हमारे से सोतले माँ का सलूक क्यों? क्या ये जम्मू कश्मीर का पहला रोड है जहाँ पर काम शुरू है?
इतने रोड हैं वो बन रहे हैं, 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर रोडों पर काम हो रहे हैं, और लेकिन इस पर नहीं हो रहे हैं। 1 किलोमीटर रोड पर काम अब तक नहीं हो रहे हैं। लिंक रोड है ये श्रीनगर टू बडगाम, अभी तक ऐसा ही है। सवाल है कि सब बोलते हैं आप ऑफिसर्स बनो, सब बोलते हैं आप बड़े बड़े ऑफिसर्स बनो, फिर हमारे देश के लिए ये तरक्की करो। मुझे लग रहा है, ये देख रहा हूँ मैं, क्या ऑफिसर्स बनेंगे हम। ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या खा काम कर रहा है इधर। 3 घंटे से हम बैठे, गला भी सूख गया अब हमारा। यही ऑफिसर्स बने, कल आज ये हमारे साथ ये सलूक करे, कल हम इनके साथ हम करेंगे। हमें ये पढ़ने नहीं देंगे क्या? 3 घंटे से कोई नहीं आ रहा है इधर। हमारे रोड्स को ठीक कीजिए, हम बीमार भी हो रहे हैं अब इस रोड की वजह से, स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। 3 घंटे से इधर बैठे हैं। 4-5 साल से परसों इनने काम लगाया, हमें लगा ठीक हो जाएगा, मगर 2-3 दिन आए बस, इधर का देखा, मजा किया हमें सिर्फ दिखाने के लिए, उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। देखिए इस रोड को ठीक कीजिए जल्दी से जल्दी, वरना हम पता नहीं इसके अभी हम 3 घंटे से बैठे, वरना हम पता नहीं क्या कर बैठेंगे। हमें पढ़ने भी नहीं देंगे, क्योंकि हमें स्कूल में मतलब इज्जत उतरती है जैसे हम ऐसे कपड़े लेके जाते हैं। स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के खिलाफ आज जम्मू में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की खवातीन विंग की जानिब से एहतजाज किया गया, जिस दौरान एहतजाजी खवातीन स्मार्ट मीटर्स को हटाने की मांग कर रही थी। इनका मजीद कहना था कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो स्मार्ट मीटर्स के हिसाब से बिजली फीस अदा कर सके, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो स्मार्ट मीटर्स को हटाए। सरकार के खिलाफ है, जिन्होंने लोगों को इतना तंग करके रखा है। आप देख सकते हो 43-60 टेम्परेचर पे आज भी लोग सड़कों पे। स्मार्ट मीटर अगर डिजिटल मीटर एक ही चीज है तो स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत क्या है? ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, हम लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ का जो रामपुरा में है, यहाँ पे पानी इतना गंदा आता है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, फिर भी लोगों को इतना तंग, हम लोगों को इतना तंग करना, लोगों की पेंशन तक बहाल नहीं की। अभी हमने सोशल डायरेक्टर से बात की, अभी भी फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा रखी हुई है। हर बंदे के पास बीपीएल नहीं है, तो मगर वो फॉर्म कैसे फिल करेगा? जब तक वो फॉर्म ही फिल नहीं करेगा तो उसकी पेंशनें कैसे बहाल होगी? आप देख सकते हो जो 7 अप्रैल को मंजीत सिंह जी की क़यादत में टोल प्लाजा में हमने प्रोटेस्ट किया था। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हमेशा लोगों की आवाज उठाती है, आम जनता की आवाज उठाती है। जब भी जनता को हमारी जरूरत पड़ेगी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सड़कों पर। त्राल के आरिगाम इलाके में पिछले 5 दिनों से पीने के पानी की किल्लत की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने कहा है कि हुकूमत ने चंद साल कबल इलाके के लिए एक स्कीम को मंजूरी दी थी, ताहम नामालूम वजूहात के बिना पर अभी इलाके में उस स्कीम पर काम शुरू नहीं किया गया और इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत की वजह से लोग पिछले कई सालों से मुश्किलात के शिकार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचे महकमा जल शक्ति इलाके में टैंकर सर्विस फराहम कर रहा है, ताहम वो पूरे इलाके को पानी फराहम नहीं कर सकता। उन्होंने मुतल्लिका महकमे के आला हुकाम से अपील की है कि मंजूर की गई स्कीम पर काम शुरू किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। नाव गुलाम कदर मल्ला, नंबरदार ये गामुक। बदकिस्मती यथ गामस 2 वरी गए 2.5 वरी ये क्यूर गोमुत सेंक्शन, यह टेंडर ति गई तो ठेकेदार ति आई नजर, जमीन कोर ACD साहबन अत मुकर्रर 4 मरल जमीन, सह वनकस ति मखसूस, मगर बदकिस्मती कि अफसर साहिबान अत कर कहीं तो कोशिश, तस से मस। आज गए 4-5 दो आबी ये गामस, तमाम गाम त्रेश कर, बिल्कुल कहें कतर नलकों मज आब नेरन, तो बिल्कुल कि आब कहें। वो कोर ये बचन फोन वाटर वर्कस वालन, यमो वन आब गई, अज द्राय जड़ 2000 ये आबादी तकरीबन 200 तो गरों मज कहीं गरस आब, बिल्कुल कहीं तो कार्रवाई कर। बिल्कुल अगर क्यूर सेंक्शन गोमुत, टेंडर गई, अप्रूवल गई, तथ यम क्या कोशिश कर, तथ यम क्या सह क्यूर दिवान, अस गन यह मसल हल, यम क्या कर यह सा यह नाजेबा सलूक। अगर यमो यह कोर तो गो जान, कोरुक न, तमाम ओड गोम नेर जनान मानी, अड़स पे दिमो धरना, ट्रैफिक करो बंद, तो यह करना तोत यमो न गर योतान यह करना क्या कर। अगर अप्रूवल गमस तथ यम क्या यह पोस गमित अलाट, यम क्या जमीन अलाट, अत मज क्या धोख। अपील सन क्यूर गोमुत मंजूर, तथ टेंडर गमित, अप्रूवल तथ यह तथ लग तन कम, अस गया आबुक मसल हल।
मकबूल है और ये आरिगामा है। एक्चुअली हम यहाँ पे मेहमान हैं, बट यहाँ पे पिछले 3 दिनों से पानी है ही नहीं, जबकि हमने फ़ोन भी किया था इनको। इन्होंने मतलब हमने शाम को भी फ़ोन किया था, कल शाम को भी उनको, और परसों शाम को भी उनको फ़ोन किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई हुई है। जबकि हम सुबह 7-8 बजे से इनकी टैंकी भी आई है, लेकिन अभी तक इनका कोई भी नहीं आया यहाँ पर कि जो पूछे हमें कि आपको पिछले 3 दिन से पानी क्यों नहीं है, या इन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। सारी औरतें आरेगामा की यहाँ पे खुद पानी भरने आई है। बहुत ज़्यादा बीमार है, किसी को घर में, किसी को बच्चे हैं घर में, किसी को बूढ़े हैं घर में, वो मत आ सकते कि किसी घर में ऐसी भी मतलब परेशानी है कि उनको कोई है भी नहीं घर में। उनको मतलब अगर किसी को कोई बूढ़ा होगा घर में, वो मत पानी लेने आएगा खुद, या उनको किसी हमसाये को जार पड़ा करना पड़ता कि आप आ जाइए, हमें पानी लेना है। जैसे मैं सुबह से 5-6 बार यहाँ पर आई हूँ पानी लेने के लिए। ऐसी मुश्किलातें हर किसी को, हमें भी घर में बीमार है, अब किसी और को भी बीमार है, और इस टाइम हर किसी के घर में परेशानी है। ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में परेशानियां नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी नहीं आ रहा है। उनको फ़ोन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आफ्टर ऑल ये मतलब मुझे लग रहा है पिछले 3 दिनों से मुझे समझ नहीं आ रहा है सो कहाँ रहे हैं। अगर इन्होंने कॉल किए कि हमें पानी नहीं है, इनको पिछले 3 दिन से सोचना चाहिए था ना। एक गांव है ये मत एक छोटा सा 5-6 घर कॉल कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, 5-6 घरों में से कोई ना कोई एडजस्ट करेगा। ये पूरा एक गांव है, उसमें से आधा गांव इसी पानी से कि हमें पानी है ही नहीं पिछले 3 दिन से। आप पूछ भी सकते हो इनको कि पिछले 3 दिन से पानी है ही नहीं 2 एरियाज में, कि आप प्लीज इस जो ये मसला है वो हल कीजिए। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
मतलब हमने शाम को भी फ़ोन किया था, कल शाम को भी उनको और परसों शाम को भी उनको फ़ोन किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई हुई है। जबकि हम सुबह 7-8 बजे से इनकी टैंकी भी आई है, लेकिन अभी तक इनका कोई भी नहीं आया यहाँ पर कि जो पूछे हमें कि आपको पिछले 3 दिन से पानी क्यों नहीं है, या इन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। सारी औरतें आरेगामा की यहाँ पे खुद पानी भरने आई है। बहुत ज़्यादा बीमार है, किसी को घर में, किसी को बच्चे हैं घर में, किसी को बूढ़े हैं घर में, वो मत आ सकते कि किसी घर में ऐसी भी मतलब परेशानी है कि उनको कोई है भी नहीं घर में। उनको मतलब अगर किसी को कोई बूढ़ा होगा घर में, वो मत पानी लेने आएगा खुद, या उनको किसी हमसाये को ज़ार पड़ा करना पड़ता है कि आप आ जाइए, हमें पानी लेना है। जैसे मैं सुबह से 5-6 बार यहाँ पर आई हूँ पानी लेने के लिए। ऐसी मुश्किलात है हर किसी को, हमें भी घर में बीमार है, अब किसी और को भी बीमार है, और इस टाइम हर किसी के घर में परेशानी है। ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में परेशानियां नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी नहीं आ रहा है। उनको फ़ोन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आफ्टर ऑल ये मतलब मुझे लग रहा है पिछले 3 दिनों से मुझे समझ नहीं आ रहा है सो कहाँ रहे हैं। अगर इन्होंने कॉल किए कि हमें पानी नहीं है, इनको पिछले 3 दिन से सोचना चाहिए था ना। एक गांव है ये मत एक छोटा सा 5-6 घर कॉल कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, 5-6 घरों में से कोई ना कोई एडजस्ट करेगा। ये पूरा एक गांव है, उसमें से आधा गांव इसी पानी से कि हमें पानी है ही नहीं। पिछले 3 दिन से आप पूछ भी सकते हो इनको कि पिछले 3 दिन से पानी है ही नहीं 2 एरियाज में, कि आप प्लीज़ इस जो ये मसला है वो हल कीजिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर